السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گناہ معاف ہونے کی کچھ نشانیاں کون کون سی ہے، یہ بھی بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے گناہ معاف کرتا ہے تو انسان میں کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے اس نوجوان کا سچا واقعہ سنائیں گے جس نے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا تھا۔ اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کیا کہا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا، اور پھر اس نوجوان نے ایسا کیا عمل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ کو بخش دیا۔ تو دوستو، آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستو، گناہ بڑے سے بڑا بھی ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی بھی ایک گناہ ہے، مایوسی بھی ایک جرم ہے۔ جتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ سچے دل کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے دلوں سے اٹھائے گئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ وہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی لاج رکھتا ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 خطروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے۔ ایک شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا خطرہ، اور دوسرا گنہگار کی آنکھ سے احساس ندامت سے بہنے والے آنسو کا خطرہ۔ دونوں خطروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کی ہوئی ہے۔ ایک حدیث تو یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کو رونا نہیں آتا، گناہوں کی وجہ سے دل سخت اور آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، تو پھر رونے جیسی صورت بنا لینی چاہیے، کیونکہ رونے جیسی صورت بنا لینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری اولاد آدم خطاکار ہے، بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جو انسان توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا انعام دے گا؟ آئیے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور وہ اپنی توبہ کو نبھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادا کی گئی تمام نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے اور پھر کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ہر ایک نیکی کے بدلے اللہ جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے اور ایک حور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے 3 انعامات اللہ نے رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب توبہ کرنے والا جب اپنی خبروں سے نکلیں گے تو ان کے سامنے کستوری کی خوشبو پھوٹے گی، یہ جنت کے دسترخوان پر آ کے اسے تناول کریں گے، عرش کے سائے میں رہیں گے، جبکہ بہت سے لوگ حساب و کتاب کی سختی میں ہوں گے۔
दोस्तों, तौबा का भी एक वक्त मुकर्रर है। इंसान को अपने गुनाहों से जल्द तौबा कर लेनी चाहिए। उम्र कब वफा हो जाए इल्म नहीं, जिंदगी की डोरी कब खींच ली जाए किसको खबर नहीं, मौत का नकारा कब बज जाए ये कौन जानता है। तौबा का बेहतरीन वक्त जिंदगी है। इंसान को अपनी जिंदगी में तौबा कर लेनी चाहिए। ये ना हो कि मौत सामने हो और उस वक्त अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर दे। उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है, उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी जो बुरे आमाल करते रहें, यहाँ के जब उनमें से एक सामने मौत आकर खड़ी हो तो वो कहने लगे मैं तौबा करता हूँ, तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती। फिरौन को भी जब सामने मौत आई तो उसने भी कहा था मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, मगर उस वक्त पानी सर के ऊपर हो चुका था। तौबा जवानी की अच्छी होती है। हम जिस जवान का वाकया बताने वाले हैं उसने भी जवानी में तौबा की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और रोते हुए आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा तो कहा, ए उमर, तुम्हें किस चीज ने रुलाया? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक शख्स मिला और उसने एक गुनाह किया है और वो उस गुनाह के डर से इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो उसको रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उमर, वो शख्स कहाँ है? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वो बाहर खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जल्दी अंदर लाने का हुक्म दिया। तो जब वो अंदर आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा, बता तू इतना क्यों रोता है? ऐसा कौन सा गुनाह है जो तूने कर दिया जिसके लिए तू उतना रो रहा है? तो उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या जमीन से भी बड़ा गुनाह किया है? कि हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन से भी बड़ा गुनाह किया है। आसमान से भी बड़ा गुनाह किया है? हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान से भी बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या अर्शे आजम से भी बड़ा गुनाह किया है? कि हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्शे आजम से भी बड़ा है। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या अल्लाह की रहमत से भी बड़ा गुनाह है? उस शख्स ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है, मगर मैंने जो गुनाह किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता तो सही वो गुनाह क्या है? उस शख्स ने कहा, मुझे बताने में शर्म आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता तो सही। उस शख्स ने अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक कफन चोर हूँ और मेरा गुजारा भी उसी के अंदर चलता है। जब भी किसी की मौत हो जाती है, मैं कब्रिस्तान जाकर खबर खोद कर मुर्दे के कफन को निकाल लेता हूँ और फिर बाजार में बेच देता हूँ। यहीं से मैं जो है पैसे कमाता हूँ और अपने घर वालों के गुजारे से का इंतजाम करता हूँ। मगर एक दिन हुआ यूं कि मुझे जब पता चला कि फला शख्स की एक लड़की का इंतकाल हुआ है और उसे कफन में डालकर दफनाया गया है, तो मैं रात में उस लड़की के कफन को चुराने के लिए गया।
खबर को खोदा और फिर उस लड़की को कफन से अलग किया और कफन निकालकर जैसे ही खबर से निकला और जैसे ही थोड़ी देर आगे चला कि शैतान ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं फिर वापस पलटा और कब्र में गया और उस मुर्दा लड़की के साथ मैंने बदकारी कर ली, जिनाह कर लिया। और जब मैं खबर से बाहर निकला और चलने ही वाला था कि पीछे से उस मुर्दा लड़की की आवाज आई जो मुर्दा लड़की की थी। वो जिंदा हो गई थी और मुझे बद्दुआ देने लगी और कहने लगी, याद रखना ए जालिम, जब किसी मजलूम पर जुल्म होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन जालिमों को जरूर सजा देता है और तुझे भी जरूर सजा देगा। बस ये आवाज उस लड़की की मेरे कान में गूंजी, मैं डर गया। अल्लाह तबारक व तआला के खौफ मेरे अंदर आ गया और यूं रोने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिन हो गए मैं बेचैन सो नहीं पा रहा हूँ। उस लड़की की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। आप अल्लाह से कहे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी, उसका ये किस्सा सुना, अल्लाह के नबी ने कहा, जल्दी से यहाँ दूर हट जा क्योंकि तूने ऐसा गुनाह किया है, अल्लाह तबारक व तआला अभी यहीं आदाब डाल सकता है। इसीलिए वो शख्स को वहां से निकाला। फिर वो जंगलों बयाबान में चला गया, 40 दिन तक भटकता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा, मगर आखिर में एक मर्तबा 40 दिन गुजर गए, वो थक गया और उसके दिल से आवाज निकली, अल्लाह की बारगाह में कहा कि मौला, अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से छोटा है तो मुझे माफ कर दे, और अगर तू चाहता है कि मेरे बहुत बड़ा गुनाह है तो मुझे इसका आजाब इस दुनिया में ही दे और मुझे आखिरत के अजाब से बचा ले। तो अगर तू मेरी तौबा कबूल करता है तो तू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से कहलवा कर मुझे माफ कर दे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस अदा को पसंद किया और उसकी तौबा को कबूल किया। और हजरत जिब्रील अमीन के जरिए अल्लाह ने कहा कि जाओ मेरे महबूब को कह दो कि उस शख्स को हमने माफ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और खुशखबरी दी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माफ कर दिया है। नाजरीन, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी होती है। तौबा का दरवाजा मौत तक खुला है। आप भी माफी मांगिए, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।